Hi everyone, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir and myself Sudhir Jirobai. So today in this video we are discussing about the questions, previous year questions asked in SSC JE as well as KPSC AE JE, right? So these are the questions on the wood as well as the timber products. So yesterday video also we have in previous video also we have discussed about on the questions on the timber, right? So today's video is also same. We are discussing on the same topic with the different questions. And before going to start this video, I would like to say please like, comment and share our videos, and please subscribe our channel and click on the just bell icon also to get all the latest notification about our from our channel. So where I am making then different PYP questions and I will complete the PYP question on all the subjects, राइट. सो सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे पूरे हम कर देंगे कंप्लीट. और सब लोग ये वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए. और ऑलरेडी एसएससी जेई का एग्जाम का डेट आ चुका है, तो सारे लोग आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए. जितना भी टाइम है आपके पास, अब टाइम पास मत कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट statement from the following method of sawing timber, right? So first option, tangential to annual rings is known as tangential method. correct, ठीक है, करेक्ट है. tangential जो भी करते हैं in 4 quarters such that each board cuts annual rings at angles not less than, right? ऐसे जो भी है ऐसा कट करते हैं ना. so this type we call it as an quarter sawing. Cut out of the quarter logs, right? This is tree. If you cut from like this, right, like a triangular portions, right? If you cut the triangular portion, ऐसा अगर कट करेंगे आप, उसको हम radial sawing करेंगे. So the all options are correct, right? So the question for this answer is all options are correct. So when you sawing the question, right, देखिए यहाँ पे देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा. ऑर्डिनरी सॉइंग को जैसे हम ऐसा इसके परपेंडिकुलर कट करते हैं, क्वार्टर सॉइंग में इसको हम 45 डिग्री में कट करते हैं, देखिए ऐसा, ठीक है, तो इसको क्वार्टर सॉइंग बोलेंगे. टेंजेंशियल इसको 4 डिफरेंट इसमें सा कट करके करते हैं, तो वो टेंजेंशियल सॉइंग हो गया. रेडियल सॉइंग हम ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक सेंटर से करते हैं. तो ये देखिए इसमें मिनिमम स्ट्रेंथ आएगा और क्या है मिनिमम स्ट्रेंथ, एंड इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा, मैक्सिमम लॉस होगा. इसमें स्ट्रेंथ अच्छा आएगा बट लॉस ज़्यादा हो जाएगा. ऐसा आपको याद रखना है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड veneers are so you have to place at right angles. For example, just remember this is one. Okay, I will show in 3D. Just imagine this is one sheet. I have already explained you, right? So this is one sheet, same here also one same sheet. If you just attach these two, or if you glue this one with the pressure, how it will looks like the cross section, right? The two timbers, right? The thickness, it will look like this. So these are the two different veneers are attached. So when you attach or glue this one, you will get the plywood. So they are at the right angles. Due to their right angles, the strength is very maximum. Okay, next question. The solution of the salts from the soil absorbed by the trees, which become a viscous solution due to the loss of moisture and action of carbon dioxide, is known as. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, solution of the salts from the soil ऑब्जर्व बाय द ट्रीज, जो पेड़ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो विच बिकम्स वैस्कस सॉल्यूशन टू डू लॉस ऑफ मॉइस्चर, एक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. इसको तो हम सैप बोलते हैं, ठीक है, इसको तो हम सैप बोलते हैं. ओके, सो सैप इज नथिंग बट द मॉइस्चर, जो द मॉइस्चर प्रेजेंस इन द फ्रेशली कट ट्री, देन इट विल कम आउट फ्रॉम दैट ट्री, राइट? दैट वी कॉल इट एज अ सैप, right? The moisture we can say. Okay, next question. The most valuable timber may be obtained from, right? Just understand this question. The most valuable timber is nothing but
which is very useful in engineering purpose, which is very useful for our engineering purpose. That engineering purpose, either it may be for any building work or any type of construction work. So that timber we can get it by teak wood, right? So that timber we can get by teak wood. See, every chair, saal or shisham having their own advantage and disadvantage. Same also the teak wood also, right? So let's discuss all this now. See, for chair it is moderately hard and it decay easily. देखिए ये जल्द इसे सड़ जाएगा, तो वो इसका है डिसएडवांटेज है. तो चेयर सो यूज इन फ्रेमिंग ऑफ डोर्स, विंडोज एंड पैटर्न मेकिंग. देखिए फ्रेम जो है डोर्स, विंडोज और उसका फ्रेमिंग बनाने के लिए ये यूज करते हैं. नेक्स्ट है शीशम. शीशम में देखिए स्ट्रॉन्ग टफ रहेगा, ड्यूरेबल एंड मेंटेनेंस इट्स शेप वेल मेंटेन्स, इजीली सीजनिंग इजी कर सकते हैं, डिफिकल्ट टू वर्क. ठीक है, तो ये जरा हार्ड ज्यादा रहेगा, इसको कट और इजीली मोडेबल नहीं है ये. इन हाई क्लास फर्नीचर, इन स्पोर्ट्स गुड्स फॉर डेकोरेटिव वर्क्स एंड कार्विंग. देखिए स्पोर्ट्स के लिए शीशम यूज करते हैं, ये याद रखना है आपको. ठीक है. साल देखिए हार्ड एंड कोर्स ग्रेन, लाइट इन कलर व्हेन फ्रेशली कट, राइट. रेजिनियस एंड लेस ड्यूरेबल, नॉट सुटेबल फॉर पेंटिंग. देखिए पेंटिंग करने नहीं आएगा साल में. इट हैज मेडिकल यूजेस and in Ayurveda for thousands of years to treat variety of diseases including piles, skin disorders and death. देखिए so इसको क्या है, so it has use for in the Ayurveda, right? You all know about the Ayurveda and all those things, that the diseases. Next is teak wood. That teak wood is moderately hard and durable and fire resistance, very important, fire resistance, and easily seasoned and worked, not attached by white ants and dry rots. See, so teak wood can't be attacked by what? White ant and dry rot, and shrinks less. Its shrinkage also very less. So limited superior work only, as it is comparatively very costly. It is costly. So for the main entrance of the doors only it is used, for the structural as well as for the appearance purpose, right? For shipbuilding, furniture, railway carriage, this type of wood is used. Okay, so ये हो गया चारों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थे उसको मैंने जस्ट उसमें एलेबरेट किया है. आप इसको देख के नोट्स बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट आंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जस्ट आपने पढ़ा था टीक वुड. ठीक है, टीक वुड क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट्स है. ठीक है, सो व्हाइट आंट्स एंड देखिए उसके बारे में यहाँ पे आपको मालूम है. ड्राई रॉट जो भी है, अगर ड्राई रॉट आपको अटैक करेगा टिम्बर को, तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. जो भी आपका टिम्बर है इट विल कन्वर्ट इट टू पाउडर फॉर्म. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टीक वुड. ओके, एंड नेक्स्ट वन, due to attack of dry rot the timber is, due to the attack of dry rot the timber is, due to the attack of dry rot the timber what will have, either it will not crack, shrink, so it will reduce to the powder, it will reduce to the powder, right? You can just seeing the question you can answer. So what is shrink? See, just we have discussed the shrinkage is nothing but it will reduce the size of the timber. Cracks is nothing but if you applied the maximum load, or if you using the different timbers, if you applied maximum load, so it will crack. Shrink is nothing but the size of the or volume will be reduced or it may be increased. So the dry rot is directly linked to the reduced to the powder, right? So there is one point, यहाँ पे एक point है देखिए, dry rot is attack on sapwood by fungus and convert it to dry and powdery condition, right? जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ठीक है, सो ये जो पिथ है, राइट, फर्स्ट जो हार्टवुड रहेगा, उसके बाद सैपवुड जो भी है, उसके बाद है मेडुलरी रेस, राइट. सो ये जो है ऐसे जो जाएगा, सो ये जो है मेडुलरी रेस है. सो सैपवुड यहाँ पे रहेगा, राइट. सो हार्टवुड बाहर रहेगा. सो यहाँ पे मेडुलरी रेस, ये मेडुलरी रेस, ये एनुअल रिंग्स, ठीक है.
तो ऐसा यहाँ पे अटैक करेगा, वो फर्स्ट यहाँ पे अटैक करेगा सैपवुड पे, सो उसको फंगस लग जाएगा, फंगस के बाद वो पाउडर फॉर्म को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन ऑन द ड्राई रॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन and shrinkage of the plywood is, the reason behind the low expansion and the shrinkage of the plywood is, देखिए तो एक्सपेंशन जो नहीं होगा प्लाईवुड को, जब हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे आप, ठीक है, उसका थोड़ा थिकनेस, तो आप देखेंगे विनीर जो है उसको एक प्रेशर से उसको एक ग्लू करके उसको एक फॉर्म में कट किए हैं। वो प्रेशर्स वो कैसे है, वो राइट एंगल्स है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, दीज आर द 4 थिन what we can say the timber or we can say the veneers, right? So when you glue this one or when you pressurize that one, so they are right angles, so the piles are placed right angle with the each other. If you place right angle, the strength is maximum in the right angle direction and the expansion and shrinkage will be controlled in a control manner. वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए so इसका आंसर हो जाएगा piles are placed at right angles with the each other, right? So expansion and shrinkage of plywood considerably reduced because in plywood piles are placed at a right angle, right? Next question, which of the following is examined to determine the age of the timber? So simple, right? आप लोग बोल सकते हैं एनुअल रिंग को हम यूज करते हैं, ठीक है, एवरी ईयर 1 एनुअल रिंग विल बी एडेड, राइट? उसको हम काउंट करके एज ऑफ द टिम्बर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सो इसके लिए एक क्रॉस सेक्शन हम देख लेंगे और एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा। देखिए, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द एक्सोजीनियस ट्री और एंडोजीनियस, 2 ट्री है ना, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, राइट? जो जैसे वो ग्रोथ होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड्स है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। उसमें भी कन्फाइनर्स डेसिडियस है, उसमें सॉफ्टवुड हार्डवुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, सेंटर मोस्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं पिथ, और एक पिथ के सराउंडिंग जो भी है उसको हम बोलते हैं हार्टवुड, ठीक है, उसको हम जो भी बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड के बाद आएगा सैपवुड, राइट? हार्टवुड के बाद आएगा सैपवुड, और ये जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेस, राइट? और ये हो गया कैम्बियम लेयर, राइट? ये जो डॉटेड यहाँ पे डॉटेड जो दिख रहा है ना, वो डॉटेड जो है ना वो वाटर पोर्शन है, वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंस रहता है, ठीक है। ऐसा जो है यहाँ पे देखिए, ऐसा ये जो है यहाँ पे सैप रहेगा, वो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वहाँ पे, उसको हमको रिमूव करना है यूजिंग द सीजनिंग, उसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके बाद हार्टवुड के बाद सैपवुड आएगा, सैपवुड के बाद इसको मेडुलरी रेस, एक कैम्बियम लेयर, और इसको हम बोलेंगे आउटर बर्ग और इनर बर्ग, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मालूम हुआ ना, एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब। द डिफेक्ट्स इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द swelling caused by growth of layers of sapwood over the wounds after branch is cut off is called as। देखिए, तो उसका क्वेश्चन क्या है, इट डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ द सैपवुड। ऐसा एक पेड़ है, जैसे ही इसका ब्रांच आप कट करेंगे तो ऐसा जो आ जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिंडगल इसको बोलते हैं हम। ऐसा वो मेन ब्रांच से अगर आप उसको कट करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपको स्केच यहाँ पे है, मैं ठीक है, यहाँ पे देखिए। सो दीज आर द डिस्टिंक्ट आउट ग्रोथ रिजल्टिंग ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड ओवर द वाउंड्स आफ्टर द ब्रांच इज कट ऑफ। ब्रांच इज नथिंग बट ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, ये मेन है, मेन ब्रांच ये बोल के समझिए, ये मेन पेड़ है, ऐसा जाएगा, और ये ब्रांच है। तो जैसे ही आप इस ब्रांच को कट करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, सो इसको हम बोलेंगे रिंड। सो ये ट्री है,
समझ में आया ना? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिंडगल? सो मेन ब्रांच से जो कट करेंगे हम लेयर सैपवुड ओवर द ओन्स आफ्टर द ब्रांच इज कट ऑफ, ब्रांच कट करने के बाद उसको हम क्या है वो श्रिंक होके बाहर आएगा। देखिए उसमें भी कुछ है अभी पॉइंट्स। चेक्स जो है, ए चेक इज एन क्रैक विच सेपरेट फाइबर्स ऑफ वुड ड्यू टू रैपिड ड्राइंग। देखिए ज्यादा ड्राइंग करने से भी यह आ जाएगा। इट डज नॉट एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइट? सो ये ऐसा रहेगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जैसा लाइन के जैसा, तो इसको हम चेक्स बोलते हैं, चेक्स। सो ये भी क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, बिकॉज यहाँ पे देखिए सारे आपको मालूम रहना चाहिए, चेक्स, शेक्स, नॉट्स, रिंडगल, ये चारों आपको मालूम रहना चाहिए। वही मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। रिंडगल हो गया, उसके बाद चेक्स हो गया, ठीक है। जैसे आप स्केच देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए सो नॉट्स कैसे रहेंगे, सो ऐसा रहेगा। देखिए सो ऐसा एक अंदर एक वो कॉलोनी बना के वहाँ पे क्या है इंसेक्ट्स पूरा इसको डिफेक्ट कर देंगे। सो दीज आर द बेसिस ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लिम्स विच आर ब्रोकन और कट एनकेज बाय द वुड ऑफ द ट्री और ट्रंक। देखिए कट जो करेंगे उसको उससे आ जाएगा। नॉट्स आर फॉर्म्ड इन द टिम्बर व्हेन ट्री लूज इट्स ब्रांच। देखिए नॉट्स कब आएगा, देखिए आपको कैसा याद रखना है, नॉट्स कब आएगा, जैसे आप मेन ब्रांच को कट करेंगे वो भी आएगा, ठीक है। बट ब्रांच को जब आप कट करेंगे वो रिंडगल आएगा। देखिए ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना। These are bases of the branches of the limbs which are broken out encased by the wood of the free trunk. Knots are formed in a timber when tree loses its branch. When the tree grows further and puts on more wood, the stumps of these branches which have fallen off are covered and appear as a knots in the sawn pieces of the timber. तो यहाँ से जो कट करेंगे, ठीक है, ऐसा अगर जो पेड़ है ऐसा इसका ब्रांच आएगा, तो इसको जैसे ही आप कट करेंगे, जैसे ये पेड़ इंक्रीज होते जाएगा यहाँ पे नॉट इंक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया नॉट। नेक्स्ट है शेक्स। शेक देखिए उसमें बहुत सारे हैं, हार्ड शेक है, ठीक है। शेक क्यों आता है, इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स। लेंथवाइज सेपरेशन रिड्यूस द अलाउएबल शियर स्ट्रेंथ विदाउट मच इफेक्ट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल होगा। देखिए यहाँ पे सो हार्ड शेक कैसा है, यहाँ पे आपको स्केच में दिख रहा है, जो भी है इट अकर्स ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ हार्टवुड, ठीक है। हार्टवुड में अटैक करेगा व्हेन ट्री इज ओवर मैच्योर जितना आप उसको सीजनिंग करने का कुछ ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज उससे निकालने का ट्राई करेंगे, उतना हार्ड शेक होने का चांसेस रहेगा। क्रैक स्टार्ट फ्रॉम पिथ एंड रन टुवर्ड द सैपवुड। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ये, so these are the hard shakes. So these are the hard shakes. So these are wider at center and diminish outwards, ठीक है, ये outwards है। So cup shakes, cup shake देखिए जैसे ये आपके एनुअल रिंग्स है ना, एनुअल रिंग्स को ये पूरा क्या है डिफेक्ट इंसेक्ट जो है खा जाएंगे इसको। तो वहाँ पे भी क्या है कप एक कप के जैसा ये यहाँ पे पर्टिकुलरली दिखेगा आपको। सो वो कप शेक हो गया। तो हो गया ना ये पूरा चार आपको मालूम हो गया ना, चेक्स, शेक्स, नॉट्स एंड रिंडगल। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स ऑफ ईज विथ विच द वुड में बी स्प्लिट। वुड में बी स्प्लिट, ठीक है। इजीली हम स्प्लिट वुड को कैसे कर सकते हैं, क्लेवेबिलिटी, शेयरिंग स्ट्रेंथ, टफनेस, स्टिफनेस, कैसे कर सकते हैं बोलिए, कैसे कर सकते हैं। क्लेवेबिलिटी बोल के यहाँ पे है, तो देखिए क्लेवेबिलिटी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ ईज विथ विच द वुड में स्प्लिट। इसको हम बोलते हैं क्लेवेबिलिटी। क्लेवर बोलते हैं ना, क्लेवर, यू आर सो क्लेवर, ऐसे बोलते हैं ना हम। सो यू आर सो क्लेवर, सो क्लेवर बोले तो इजी, हम मेथड वहाँ पे उस प्लेस को ढूंढना है जहाँ से हम टिम्बर को इजीली कट कर सके। सो उसको ही हम बोलते हैं क्लेवेबिलिटी। ओके, सो शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वुड टू शेयर स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंट व्हेन द टिम्बर इज यूज फॉर द बीम्स। देखिए सो बीम्स को जैसे आप यूज करेंगे, राइट, सो यहाँ पे 2 सपोर्ट आएगा, तो यहाँ पे कितना लोड आया, वो बेंड कितना होगा, ये सब के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। स्टिफनेस इज नथिंग बट टफ, कितना टफ है, डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन टिम्बर अंडर द लोड।
कितना टफ है, कितना स्ट्रेंथ अच्छा है, सो वो कितना बेंड होने से उसको रोक सकता है, वही है स्टिफनेस। नेक्स्ट है टफनेस। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट शॉक लोडिंग, कितना शॉक लोडिंग या शॉक ऑब्जर्व कर सकता है टिम्बर, वही है टफनेस। ओके, ये समझ में आया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Which of the following is a limit of moisture content that can be achieved in the air drying process of timber? Air drying process of timber में, ठीक है, कितना मॉइस्चर निकालते हैं? तो 15%, राइट, 15%। एयर ड्राइंग में 15% क्या है, हम सीजन कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं। इन एयर ड्राई प्रोसेस seasoning, the moisture content in timber less than 18% is difficult to attain. However, moisture content up to 15% can be achieved. देखिए 18% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 50% आराम से हो जाएगा बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। समझ में आया ना? सॉरी, ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। Which of the following quality of timber can be improved using एबल्स प्रोसेस? यूजिंग एबल्स प्रोसेस जो है, तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे 4 प्रोसेस है, उसको हम समझ लेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, वो ड्यूरेबिलिटी, फायर रेसिस्टेंस, केमिकल रेसिस्टेंस या स्ट्रेंथ, कौन सा देगा? वो कभी भी फायर रेसिस्टेंस देगा। देखिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फायर रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स: सर एबल्स प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ special chemical such as ammonium sulfate, बोरैक्स, जिंक क्लोराइड, ब्रिक एसिड। सो इसको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, टिम्बर पे जैसे हम प्लेस करेंगे ये सबको, उससे हमारा क्या होगा? फायर रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वालिटी ऑफ द टिम्बर इम्प्रूव यूजिंग एबल्स प्रोसेस। सो फायर रेजिस्टेंस से, इससे फायर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? देखिए, सो सर एबल्स प्रोसेस क्या है? सो इसमें क्या हो जाएगा? टिम्बर सरफेस को क्लीन एंड कोटेड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट से। सोडियम सिलिकेट से Na2SiO3 से इसको कोटेड करते हैं। सो इसको क्रीम लाइक पेस्ट ऑफ स्लेक फ्लैट लाइम इज अप्लाइड। सो इसको पेंट करते हैं, पेंट के जैसे इसको पेस्ट करके। सो फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा इज अप्लाइड ऑन द टिम्बर सरफेस। सो इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो उसको ही हम बोलते हैं सर एबल्स प्रोसेस। उसका देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सोडियम सिलिकेट, आपको याद रखना है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इंक्रीज बाय वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड्स यूजिंग वेरियस प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव बोलते उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है, टिम्बर को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। सो ASCU इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। ओडरलेस गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाइट आंट्स। देखिए, व्हाइट आंट्स के लिए ASCU प्रोसेस हम करते हैं। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस है। अदर प्रिजर्वेटिव्स आर क्रिसोसोट ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा साउंड हो गया। क्रियासोट ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव सच एज नेप्था, ठीक है, नेप्थेनेट्स, ट्राइक्लोरोफोर, वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेशन सच एज बोरिक एसिड एंड बोरैक्स सोडियम फ्लोराइड। ये सब क्या है? सो प्रिजर्वेटिव्स है, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड। IS कोड के हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट कितना होने के बाद हम टिम्बर को वेट नोट कर सकते हैं, टिम्बर का वेट नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट मीन्स 12%, आपको मालूम है, ठीक है, 12%। देखिए, एज पर IS 1141, ये कोड बुक इंपॉर्टेंट है। देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेल सीजन टिम्बर इज 10 to 12%. एज पर द कोडल प्रोविजन, वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%. Very very important question, very very important question. Next, what is the recommended moisture content of timber which is issued as a structural element for windows? देखिए,
मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर में कितना रहना चाहिए जो मटेरियल आप विंडो में यूज करने वाले हैं एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अभी मैंने आपको बोला था 10 to 12%, सो यहाँ पे 10 to 12 तो नहीं है, तो 10 to 16% आप टिक कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। सो ये समझ में आया ना, क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, आपको जस्ट समझना है क्या है। तो ये सारे का आंसर एक ही है, सीजनिंग ऑफ द टिम्बर आपको पढ़ना है अच्छे से, जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। When timber, next question, when timber is burned in the wood, fire over depth of about 15 mm in the process of treatment is known as। देखिए ये जो सारे प्रोसेस है ना, ये प्रोसेसिंग जो प्रिजर्वेशन के है, तो इसको हम बोलते हैं चेयरिंग। देखिए चेयरिंग क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो चेयरिंग इज इन दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस timber is burnt in the wood fire over a depth of about 15 mm to make it fire resistant। देखिए फायर रेजिस्टेंस करने के लिए 15 mm डेप्थ उसको खुदाई करके उसको क्या है करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, रूपनिंग प्रोसेस, वो भी समझ लीजिए। इट इज अ प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ टिम्बर इन विच सिलेंडर इज फिल्ड विथ टिम्बर एंड क्लोज्ड। देखिए ऐसा क्लोज चेम्बर में इसको प्लेस करते हैं, उसके बाद उसको बंद करके क्या है प्रेशर देके, इसका एक अलग प्रोसेस है। सो दिस प्रोसेस स्पेशली रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग टिम्बर ऑफ मिक्सड स्पीसीज एंड टिम्बर कंटेनिंग सैपवुड एंड हार्टवुड। दोनों जब मिक्स रहेगा सैपवुड और हार्टवुड, उस कंडीशन में ठीक है ये मेथड यूज करते हैं, राइट। उसका नाम है रीओपनिंग प्रोसेस। रीओपनिंग प्रोसेस को हम कंबाइंड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्यूल सेल और बितल प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस यूज व्हेन द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रिजर्वेशन इज डिजायर्ड। सो मैक्सिमम हमको ज्यादा चाहिए प्रिजर्वेशन, सो फिलिंग ऑफ सेल्स एंड सैचुरेटिंग इट्स वॉल्स विद द प्रिजर्वेटिव, उसको पूरा फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है बॉचरिंग प्रोसेस। बॉचरिंग प्रोसेस, सो यहाँ पे क्या करते हैं, सैपवुड है जो है ना, ग्रीन टिम्बर्स जो भी बैम्बो रहता है ना, ठीक है, बैम्बो जो भी है ना उसको भी हम प्रिजर्व करना है। उसको भी अगर आपको बैम्बो को प्रिजर्व करना है तो आपको ये प्रोसेस को यूज करना होगा, इस प्रिजर्वेटिव को यूज करना होगा। तो उसको क्या करते हैं देखिए, एनी ऑफ इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। तो आज के वीडियो में इतना ही बस है, इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है मैंने डिस्कस किया है। हमारे प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि सबको इस वीडियो का फायदा उठा सके, और सारे लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सुधीर, और लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप वहां से भी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, एसएससी एग्जाम ऑलरेडी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, 3 मंथ्स के बाद एग्जाम्स है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए। सारे लोग प्लीज इस वीडियो को, जो भी इस वीडियो को देखे हैं लास्ट तक, उसको धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like, comment, share, don't forget। Thank you and all।